Good evening, everyone. Uh, Today's we have the Dr. Kaumudi Wave. She is the founder and principals at the YOM Consulting Services, San Francisco, USA. Dr. Wave has a PhD in the public health, biostatics, and environmental health sciences with 20 plus years of experience in biopharmaceutical drug discovery and development. And she has committed to understanding the human condition from the microbes, moleculars, and she has also the more than 25 years experience in the cancer research, and she's involved in the uh, many organization as a cancer advisor, and even she is also the part of the BBF cancer care. So, Dr. Komiti, it is over you, please. I'm very good, thank you, and I'm happy to be here today to speak with all of you. Thank you, Dr. Birendra, for inviting me. Yeah, welcome. So, please share your slide. Okay. Give me one moment. Sorry, 1 minute. It's taking a little bit longer. Just give me 1 second here to share my screen, bring up my slides. But I'm happy to see everyone here. And today I'm here to talk to all of you about uh, how to understand the scientific and clinical findings, latest research in breast cancer. Okay, so let me just share my screen really quick. Yeah, Dr. Okay. Kumdiya, it will be better if you'll explain in Hindi if you are Okay. able to. So, Absolutely. So, yeah, what I'll do is I'll explain in Hindi and English. yeah, Okay. So, give me 1 second here. Skip this. Actually, I would like to be able to see this. 1 sec. Okay, and that's fine. Okay, so so today I'm talking about the latest scientific and clinical findings um, in in uh, in breast cancer. And before I begin, I just had one technical question, Dr. Birendra. I would like to be able to see you as well as the slides. So for yeah, that, when I put it in slideshow, it's not allowing me to do that somehow. So should I just keep it in not a slideshow, but yeah, it's fine, it's fine. okay. That way I can at least see if people have questions. अगर किसी को सवाल है तो हम बीच में रुक के वहीं बातें भी कर सकते हैं. तो this is Yeah, the view that I'm going to show. And so, like I mentioned, I will explain in English and a little bit Hindi as well. And if anyone is not understanding or the pace is too fast, please send your comment to Dr. Birendra, and then he can yeah, announce that, and I can adjust accordingly. yeah, Okay. Okay. So let's see. Okay. So give me. Okay. 1 second. All right. yeah. So taking a look at global cancer statistics. This is from 2 years ago, but this is the latest statistics that are available. If you look at this table here on this first slide that I'm presenting to all of you, you'll see the world population as of 2022
Here on the right hand side, this is the entire population that was measured, and males versus females. Okay, this column has the different types of number of cancer cases, age standardized, meaning according to different age groups, how many cancer cases per 100,000 are seen. Okay, then the risk of developing the cancer before you turn 75, and then top 3 leading cancers. And if you look, I've circled here, for males it's different, but for females worldwide, breast cancer is the top leading cancer that is found, and it's also happens to be the top amongst the cancers for females, for women, महिलाओं के लिए जो जिनसे जो हानिकारक है, मीनिंग द मोर्टेलिटी रेट इज हाई, डेथ रेट अराउंड द वर्ल्ड. तो पहले आज हम स्टेटिस्टिक्स देखेंगे थोड़ा, वर्ल्ड वाइड कैसे स्प्रेड है, और हिस्टोरिकली कैसे ट्रेंड्स है वो थोड़ा देखेंगे. फिर हम रिस्क फैक्टर्स की थोड़ी बातें करेंगे, और फिर हम जो मोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, यानी कि आजकल आप जब जाते हो स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, अगर आपके पहचान वाले किसी को ब्रेस्ट कैंसर मानो हो गया, ऐसे आपको पता चला, तो उनके साथ जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है, उस टेस्टिंग में क्या क्या बातें देखते हैं, वो हम देखेंगे. विल टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ मोलिकुलर टेस्टिंग दैट हैपेंस, meaning rather than that we'll try to understand what is what is the biology that they are looking at. Okay, so first things first, now I'm showing you that breast cancer is the top cancer for women, that is a concern worldwide, right? I'm based in the US, and so I'm showing you that as of this year, about 300,000, a little more than that, new cases of invasive breast cancer were projected to be diagnosed this year. Meanwhile, worldwide, what is the impact of breast cancer? And then this particular figure is just showing you the different states in India have different incidence rates of breast cancer. Okay, but if you want to take anything from this slide, then see that in India, a woman is diagnosed with breast cancer every 4 minutes, meaning it's pretty common. And not just that, but it's increasing. तो ये जो ग्राफ है उसमें हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से फ्रॉम 1990 अप टू 2010 और उसके बाद अब तक, हाउ इज द इंसिडेंस, यानी कि पर 100,000 पीपल, पर 1,00,000 लोगों में कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर. तो on the left hand side you see for all age groups, it's standardized, and on the right hand side under 50, इन्हें 50 साल के कम उम्र में वो बढ़ता जा रहा है. Look, I've highlighted this yellow line here for South Asia in general, where India is, as you know, in South Asia. Those numbers have been rising, वो बढ़ रहे हैं. Okay, so similarly, the death rate, which is mortality rate per 100,000, is also has been steadily sort of increasing in South Asia. For breast cancer, early detection is very key. If you want to prevent unnecessary complications, more advanced treatments, and lesser chances of survival and good quality of life, अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. यानी कि जितना जल्दी पता चले कि कुछ है, कुछ एबनॉर्मैलिटी है, यानी कि कैंसर हो सकता है, तो जितना जल्दी आप पता करोगे उतना जल्दी उस पे कुछ इलाज कर सकते हैं, और वो इलाज इफेक्टिव हो सकता है कैंसर को
हटाने में, मिटाने में और आपकी लाइफ बढ़ाने में और अच्छी तरह से आपको लाइफ मिलने में. ओके, so this is, yeah, it is the most common cancer amongst Indian women. The rates are highest for ages between 40 to 80 years, and early detection is key. Now, why? You will say कि why should we just believe? ना आप बोल रहे हैं तो ऐसे हम लोग क्यों विश्वास करें कि early detection is good? तो if you look this, ये यहाँ पे लिखा है 5-year survival rate, यानी कि जिस दिन आपको पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को पता चलता है कि ओके ये डायग्नोसिस मिला है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उस डायग्नोसिस से 5 साल तक व्हाट आर द चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, ये किस पे निर्भर है, लाइक व्हाट डज इट डिपेंड ऑन. तो कैंसर का कौन सा स्टेज है व्हेन इट गेट्स डायग्नोस्ड? There are 4 stages of cancer, of this breast cancer. And the 4 stages, I'll explain, we'll go into details. But the 4 stages from 1 through 4 go through more and more advanced stage of cancer. So the later you are screened and it gets detected, the more advanced it is typically. So if the cancer is detected at stage 1, these numbers are based off of US populations, and so it's a little bit different in each country, but just understand that the survival rate is really high when it's caught early. So in stage 1, there's a very high, close to 100 in the US. If you have all the treatments available to you immediately, तो सर्वाइवल अच्छी तरह से हो सकता है. स्टेज 2 को भी हो सकता है और बाद में स्टेज 3-4 में जरा मुश्किल हो जाता है. ओके, So, Dr. Kamali, या may I interrupt? So, एक क्वेश्चन मतलब ओके, जस्ट कि किस किस रीजन में कैंसर सबसे ज्यादा है? मैं इस रीजन का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमें, यदि आपने इधर साउथ एशियन कंट्री की बात की, तो वैसे हाँ जो है कि यूएस में या यूएस रीजन में कैंसर का क्या कितना है, मतलब इन कंपैरिजन टू साउथ एशियन? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो हम फिर से उस पहले स्लाइड को जाते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, तो ये ऐसे लेट्स गो सिस्टमैटिकली थ्रू दिस. तो पहला जो ग्रीन में है ऑन द टॉप हियर, हाँ, 1990 से लेके अब आज तक, ऐसे 2020s में लेके, हाँ, हम देखेंगे कि per 100,000 people, this green here is North America, so US, Mexico, Canada, all of these countries, North America in general. Say in 1990 it was 100 people per 100,000 ऐसा रेशियो देते हैं, है ना? तो वो थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन एकदम से ऐसे धीरे धीरे करके कम हो गया और अब it's settled around somewhere, say 90 people per 100,000. I like this question that came right now, because if you relatively see numbers wise, तो yes, South Asia जो है वो है ही कम इस पे. तो we can talk about the reasons why. ऐसे कोई बोलता है कि रिपोर्टिंग कम होती है, ऐसे कोई बोलता है कुछ और रीजन हो सकता है. लेकिन अगर मान लो कि ये रिपोर्टिंग एग्जैक्ट है, तो फिर in general the numbers are less. In general the numbers are less than North America. You can see in this graph. But the numbers are rising. तो वो है तो कम, लेकिन धीमे धीमे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. So okay, so here's North America. Then you have in let's see, blue here, Latin America and Caribbean, वहाँ का. फिर अफ्रीका का एकदम क्लोजली इट्स ट्रैकिंग विथ साउथ एशिया, ऐसे आप देख सकते हैं. तो आई होपफुली दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Okay, so coming back to the different stages, if you catch it early, it's यार ऑल्सो, मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि
एज पर माई नॉलेज ये है कि जो उच्च आय वाले देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे हाई इकोनॉमिकल स्टेज है, उन कंट्रीज में कैंसर के जो मामले की संख्या है वो अधिक होती है, बट जो रेट ऑफ मॉर्टिलिटी है, मतलब मौत जो कैंसर से होती है वो जो है कि जो लो इकोनॉमिकल कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें ज्यादा होती है। आप सही बोल रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये दो हम फिर से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड है इसमें इंसिडेंस यानी कि कितने कैंसर केसेस पर 100,000 है ये बताया है, और नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मॉर्टैलिटी रेट। तो वही ग्रीन लाइन अगर आप देखें तो कितनी एकदम जल्दी से नीचे आ रही है, यानी कि सपोज 90s में if 100, let's go here again, okay, if about 100 people per 100,000 were having breast cancer, so 26 of those were having that one. You cannot actually do it, this is not the right way, but just for understanding, I'm saying this right now, you just to compare ki 26 out of 100,000 are facing that. So it's a mortality rate of 26 per 100,000. But then over the years, because of advanced treatments, it has dropped. And now in the 2020s, it's somewhere around, say, 17. Okay. Meanwhile, in South Asia, even though the incidence rate is around, say, 30 cases per, somewhere around 30 per 100,000, the mortality is half of those, if you look at it roughly, right? Half of those, it's 15 per 100,000. तो इसी में पता चलता है कि वो रेशियो जो है वो it's a bigger ratio for South Asian countries. Yeah, from these graphs you can see, and this study was done to look at global breast cancer incidence and mortality by region across the world. ऐसे तो आप देख सकते हैं। पर आप ये रीजन जो है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अर्ली डिटेक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब अवेयरनेस जो है कि वहाँ पे जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, जबकि इवन मैं अब एज पर माय एक्सपीरियंस में देखूं तो इवन ब्रेस्ट कैंसर जो कि इजीली डिटेक्ट हो सकता है लेडीज में, वो भी हमारे यहाँ एडवांस स्टेज में आती हैं हॉस्पिटल में। करेक्ट। तो उसमें थोड़ी बातें हैं मुझे बतानी है कि क्या हुआ कि वो डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे भी हुआ है कि बहुत ज्यादा, ओके, हम लोग उसमें जाएंगे अगले स्लाइड्स में कि there is a stage, there is something also called over diagnosis, okay, and in the advanced countries there was a stage, where it was too much, meaning if it's not all the very very early tiny lesions will arise into breast cancer, तो वो अलग सी बात है, लेकिन we don't have to worry about that now because it's a very different scenario in India or some country where awareness is not that much. तो yes, early detection is still very important. और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अर्ली स्टेजेस में अगर पता चले कि है ब्रेस्ट कैंसर, तो 5 ईयर सर्वाइवल की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज अपोज टू स्टेज 4, यानी कि बहुत सारा बढ़ गया है कैंसर, और तब आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हो और पता चलता है कि अरे ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर वो ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्यों मुश्किल हो जाता है हम देखेंगे, विल सी दैट इन अ बिट। तो स्क्रीनिंग कैसे करें? हाउ डू यू स्क्रीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर? सो समथिंग कॉल्ड मैमोग्राम, ऐसे इट इज लाइक एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। सो ऐसे वो डॉक्टर्स ऑफिस में जाके मैमोग्राम करवा सकते हैं। फिर और ज़्यादा एडवांस्ड में एमआरआई भी इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या क्लिनिक में जाके आपके डॉक्टर पे, रेगुलर डॉक्टर जो है वो डॉक्टर के पास क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम करवा के रेगुलरली करवा के अगर आप ले, तो चांसेस है ज़्यादा कि जल्दी पता चल सके, कोई छोटे ऐसे नोड्यूल्स ऐसे कुछ पता चल सके पहले ही, यू कैन कैच इट अर्लियर। ओके, तो आप अपने जो डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर या ऐसे, उनसे ये बातें प्लीज कर ले कि ओके आई एम
आई नीड टू हैव दीज रेगुलर एग्जाम्स। और हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, एंड दिस विल टाई इन टू द अर्लियर क्वेश्चन अबाउट वेस्टर्नाइज्ड और द मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज या फिर अदर कंट्रीज, व्हाई देयर मे बी सम डिफरेंसेस। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन ब्रेस्ट कैंसर? ओके, उसमें से कोई तो रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, और कोई ऐसे है जो हम चेंज कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वी कैन मैनेज देम। सो रिस्क यानी कि क्या, कि हायर चांसेस होते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर होने का, ऐसे रिस्क। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड? सो गेटिंग ओल्डर, हम लोग सब लोग तो एवरी ईयर बर्थडे आता है और हम लोग एज इंक्रीजेस, तो एज इज अ बिग फैक्टर दैट यू कैन नॉट चेंज। फैमिली हिस्ट्री और इनहेरिटेड जीन्स, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे पूर्वजों से जो जेनेटिक्स आता है, वो बेसिक जेनेटिक्स तो हम नहीं बदल सकते। और वो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू जो है, उसके लाइक सेल्स जो ऑर्गेनाइज हुए हैं हमारे बॉडी में, वो जो है वो भी हम नहीं बदल सकते। और अलग अलग एथनिसिटीज जो है, बैकग्राउंड्स है, जेनेटिक्स के बैकग्राउंड्स है, उसमें से रिस्क भी आता है, ज्यादा है, कम है, ऐसे न्यूअर स्टडीज आर कमिंग अबाउट दैट, वो हम नहीं बदल सकते। पर हम क्या क्या चीजें बदल सकते हैं? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स वी कैन एड्रेस? हेल्दी वेट, तो अगर वेट बहुत बढ़ जाता है तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो फिजिकली एक्टिव रहने से, फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा कम होता है। फिर इफ यू डोंट ड्रिंक मच अल्कोहल, ऐसे चीजें, उनसे भी रिस्क कम होता है। तो it is it is thought that about 1/4 of breast cancers can be prevented through lifestyle choices. But these studies are little people can agree disagree, thoda ho sakta hai kyunki new studies are coming out, but overall in the field right currently this is what is understood. तो जो कुछ हमारे हाथ में है वो हम ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अर्ली स्क्रीन कर सकते हैं, क्योंकि एज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। आप देख रहे हैं इस ग्राफ में। सो आपका जो एज है, अगर आप 20 से 30 साल के हो तो आपका रिस्क बहुत कम है, लेकिन आप जैसे जैसे आप 50, 60, 70 साल के इस अबव 40 आपकी उम्र हो जाती है तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि 40 एंड अबव में रेगुलरली, एक्चुअली अब वो वर्ल्ड वाइड ये एज भी कम होता जा रहा है जहाँ की वो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस रेट्स हो रहे हैं, तो फिर 30s 40s में regularly having some sort of breast cancer screening is a very good idea, so that hopefully it can be caught earlier rather than later. So again, now this is just looking at the risk factors and just showing you कि कोई ऐसे risk factors है जो कैसे, हाँ, साइंटिस्ट लोग कैसे स्टडी करते हैं इस बात का, राइट? पॉपुलेशन रिसर्च या मैकेनिज्म रिसर्च, कैसे होता है रिसर्च? कोई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कैसे देखते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में, देश के सब लोगों में, या जग भर, इन वर्ल्ड वाइड सब लोगों में कितना इंसिडेंस है। मैंने जो पहले ग्राफ्स आपको बताए, तो per 100,000 people, how many of them are getting this kind of cancer, breast cancer, या फिर how many of them are facing mortality, death because of that cancer. तो एक्सरसाइज, डाइट, फूड इनटेक, ब्रेस्ट फीडिंग करना चाइल्ड को, उससे ब्रेस्ट फीडिंग से रिस्क कम होता है। डाइट को अच्छी तरह से, लाइक वेजिटेरियन, सिंपल फूड, ऐसे इन बातों से रिस्क कम होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली करने से रिस्क कम होता है। ये सब कैसे एस्टैब्लिश किया साइंटिस्ट लोगों ने? ऐसे पॉपुलेशन स्टडीज करके, बहुत लोगों को स्टडी करके, उनके लाइफस्टाइल क्या है और उनका ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस रेट्स या ऐसे क्या है, इससे पता चलता है। ऑन दी अदर हैंड, हमारे इन्वायरमेंट में जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही है, जो सब मॉडर्नाइजेशन हुआ है वर्ल्ड वाइड,
उससे ना केमिकल्स ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में लीच आउट हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ों में ऐसे बिस्फिनॉल, एल्यूमिनियम ऐसे अलग अलग के पीएफओज, अलग अलग के ऐसे केमिकल्स है। वो केमिकल्स हमारे लिए हानिकारक है, ये साइंटिस्ट लोग कैसे बताते हैं। तो हमारे जो जो पेशियां हैं, द सेल्स इन आवर बॉडी, द सेल्स इन आवर बॉडी हैव a certain system by which they work, and these chemicals come and disrupt that system. So that is studied in the lab. तो there is evidence, proof, lab studies से कि हमारे cells को अच्छा नहीं है वो chemicals, because they disrupt completely what the functioning of the cells is happening, normal functioning. So these two ways there is evidence. Okay. So now when common question is breast cancer hereditary होता है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे? So just understand that hereditary is only 5%. हाँ? ऐसे familial बोलते हैं, meaning some of the genes are mutated, यानी कि हम will go into that. Some genetic changes होते हैं, but it's not exactly hereditary, but it makes you at higher risk for breast cancer. That is about 10% of the cases. But sporadic, यानी कि अभी तक पता नहीं है कि exact cause क्या है. 85% of the cases are like that for breast cancer. Okay. So now, तो हम ये 1 मिनट के लिए, कोई सेकंड के लिए देखेंगे ये स्लाइड की gene mutations, and I'm going to explain what is this word gene mutations. Okay. या डॉक्टर कमल जी, हाँ. सो एक क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इस स्लाइड के साथ ही आप बता सकते हो कि किसी ने Okay. पूछा है कि उनके मदर को कैंसर था तो क्या उनको भी होगा, शायद हाँ. इसके, तो इस Okay. स्लाइड के साथ साथ शायद आप एक्सप्लेन कर पाओ। Yeah. Okay, thank you, Dr. Virendra. Yeah, that's a good question. हाँ, ऐसे question आते हैं, and I will try my best now to make it clear कि कैसे होता है. So the question is, some person has a question that my mother had breast cancer. Does that mean will I get it too? Okay, I'll go back to the earlier slide once more. So how do people know whether a cancer is hereditary, familial, sporadic? This is because years of study about the genes. Genes यानी कि क्या? हमारे सेल्स में जो हर एक सेल में बॉडी में डीएनए करके है एक मॉलिक्यूल, वो डीएनए जो है वो मानो कि सॉफ्टवेयर कोड जैसा है। हाँ, हमारे बॉडी के लिए कोड जैसा सॉफ्टवेयर कोड, और इस सॉफ्टवेयर कोड में अगर कुछ थोड़े लेटर्स इधर उधर के, लेटर्स यानी वो केमिकल्स है, इधर उधर के मॉलिक्यूल्स बदल गए तो अलग ही इंस्ट्रक्शंस जाएंगे ना सेल्स को। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ हेल्दी ऑर्गन, हेल्दी बॉडी, वो कुछ कुछ सेल्स ऐसे पता करेंगे कि ओ वाओ, आवर डीएनए इज टेलिंग अस कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, एंड दैट कीप ग्रोइंग, वो जो सेल्स है वो ऐसे बढ़ते, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे बढ़ के दैट बिकम्स अ ट्यूमर, एंड दैट बिकम्स कैंसर। तो वो कौन से मिस्टेक्स है उस डीएनए में, उसमें से कोई तो है। ओके, सो बहुत से, लाइक आई सेड, कैंसर केसेस है जिसमें कोई नोन जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है। सो द क्वेश्चन वाज कि इफ माय मदर हैड कैंसर विल आई? सो इफ somebody's mother had cancer, and their cancer was the cancerous tissue was studied in the lab, and the genes were studied, meaning कि it is now possible to do these tests, okay, very regularly also, कि कौन से mutations थे उसमें, या फिर if I'll tell you, there are 2 important genes, BCR, BRCA1 and BRCA2 करके है, तो वो जीन्स में अगर कुछ चेंज है तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की। इट डज नॉट मीन कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ती है। और वो टाइप का जेनेटिक टेस्ट जो है कि हेरिडिटरी चांसेस है या नहीं, वो ब्लड सैंपल से, सलाइवा से ऐसे कर सकते हैं। इवन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स ऐसे टाइप का टेस्टिंग किया जा सकता है, बट दैट इज ओनली टेलिंग यू रिस्क। ऐसे बहुत सारे अदर जीन्स है, ये सब जीन्स के नाम है, चेक2, P10, ATM, P53, यानी कि देर आर रीजन्स ऑफ द डीएनए
in which the changes may have happened. On those changes, which exact change happened has been studied also. And those changes are important in breast cancer. Now, if the someone's mother, if the mother had breast cancer, and that breast cancer, those cells had some of these mutations, then the doctors might advise the person, why don't you get tested right now? Okay, you're young, you're healthy. Why don't you get tested for these BRCA1 and 2 genes to see if you have those genes, if you have a higher risk, then you can modify. आपको पता चलता है कि ये जीन्स हाँ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज controversial about whether people, it is a personal choice how you want to deal with that part. But I hope that answered your question about Yeah, finding out. another question इसी से रिलेटेड है कि Hmm. क्या अनुवांशिक हेरिडिटी कैंसर रोका जा सकता है? तो इस चीज पे हम थोड़ी स्लाइड्स बाद बात करेंगे, पक्का, ओके आई प्रॉमिस. ओके, ओके ओके. सो अब तक हमने जो कुछ इंफॉर्मेशन कवर किया है उसको हम थोड़ी देर शांत चित्त से ऐसे let's digest that. Okay, so everyone who's on this call, or if you're going to listen to this call later, just take this moment to take one pause, one एक शांत deep breath, and just in your head, you can close your eyes if you want. Just think of all the things that Dr. Bhave has just covered. We talked about risk, we talked about lifestyle, we talked about early screening. 3 चीज़ें हमने बातें की है. लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस, ऐसे सब फैक्टर्स. हमने बातें की है अबाउट रिस्क, जैसे एज के साथ बढ़ जाता है. वी टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग. जब जल्दी पता चलता जाता है तो ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे हैं आजकल. देयर आर नाइस एंड न्यू ट्रीटमेंट्स नाउअडेज. And we talked about how these risk factors have been studied. If you're thinking about this at all, just remember that your own meaning is much deeper than any cancerous cells that it may be dealing with. So even if someone you love, someone you know is dealing with breast cancer, तो आप ध्यान में रखो कि आपका डीपेस्ट मीनिंग जो भी है, that is much deeper than the cancer cells that your body may be dealing with in any given moment in time. अब वो कैसे, उसके बीच का बायोलॉजी क्या है, वो हम देखेंगे. Okay, this slide has many biology concepts. Don't get scared by all the different words and everything on this slide, but just follow me through that. हम लोग ने बात की कि ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट हियर. हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं. ओके, यानी कि ओके, ह्यूमन बॉडी में स्किन, ब्लड, बोन्स, ब्रेन, स्टमक, यू नो, हार्ट, लंग्स, ये सब जो ऑर्गन्स है आपके, वो किस से बनते हैं? पेशियों से बनते हैं. पेशी माने कि सेल्स. एंड दिस डायग्राम हियर इज जस्ट शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ वन सेल. तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है आप देखो कि एक सेल में यू हैव ऑल दिस साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसे. उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, यानी कि एक सेल में छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट्स है जो अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं, और सब एक साथ कार्य करके एक सेल का कार्य हो जाता है, एक पेशी का. और ऐसे एक 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 करके बहुत सारी पेशियां एकत्रित आके कौन सा भी टिश्यू, स्किन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, बोन, ऐसे बन जाता है.
या दिस इज सेंटर इन द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो उस न्यूक्लियस के बीचों बीच इन द न्यूक्लियस आर दीज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डीएनए. डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का होता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज उसमें और 4 कंपोनेंट्स मुख्यतर है जो ATGC करके है. ऐसे चार चार आप अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ अगर काम किया है तो इमेजिन देयर आर 4 डिफरेंट कलर्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स और उससे उसका एक चेन बनाया गया है. दैट इज डीएनए. हर एक पेशी के अंदर, हर एक न्यूक्लियस के अंदर. एंड उसमें जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो that is those genetic changes that we talked about earlier. I'll just bring you back all of this. What does this mean? Those some changes are happening in this DNA which is in the nucleus of the cells यानी कि सब पेशियां. Remember that this पेशियां यानी cells is right here. This whole pyramid, you can remember this pyramid like अणु रेणु यानी एटम्स. अणु रेणु एटम्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. वो सब मॉलिक्यूल्स सेल्स में है. वो सेल्स हर छोटी छोटी पेशियां करके टिश्यूज के ऑर्गन्स यानी कि एक ब्रेन हो गया, एक हार्ट हो गया. ऐसे ऑर्गन्स के सिस्टम्स यानी सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ब्लड हार्ट से पंप होके पूरे बॉडी में जाता है कि नहीं. तो वो पूरा सिस्टम हो गया. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप हायरार्की ऐसे एक एक लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ चीजें. तो वो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म यानी कि हम ह्यूमन, एक एक ह्यूमन हो गया और बहुत सारे ह्यूमंस करके पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया. और ऐसे सब हम लोग कम्युनिटीज कम्युनिटीज करके देश हो गया, देश बहुत सारे देश करके अपने पृथ्वी हो गई. राइट. किसी भी स्तर पे जब डिस्टर्बेंसेस है तो वो डिस्टर्बेंसेस बैक एंड फोर्थ जाते हैं और उसे हम देख सकते हैं इन द फिजिकल बॉडी एज वेल. राइट. यानी कि एनवायरनमेंट में अगर कोई केमिकल्स है तो वो आपके ब्रेथ से, आपके फूड से जाते हैं तो आपके पेशियों को योर सेल्स गेट टू सी देम एंड देन मे बी दे आर नॉट हैप्पी एंड कुछ चेंजेस आ जाते हैं. तो वो क्या चेंजेस है हम देखते हैं यहाँ. नाउ वी आर लुकिंग एट एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो मैंने बोला कि दीज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गन्स. तो यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि आप सबको पता है कि मिल्क प्रोडक्शन इज द मेन फंक्शन इन द रिप्रोडक्ट आफ्टर पोस्ट बर्थ years of a woman's life. तो उसके लिए सब the cells are arranged in that manner. So you have these what is called lactiferous ducts, ऐसे ट्यूब्स जैसे, और वो ट्यूब्स हर एक ट्यूब में there are these lobules ऐसे where the milk production happens when necessary for if the mother is feeding a infant newborn. But otherwise that's not happening, right? But how are those lobules organized? Those lobules, and what are they made of? They're made of cells. हमने एक सेल का स्ट्रक्चर देखा. तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे हर एक सेल कैसे दिखाई गई है. वन सर्कल, उसमें एक छोटा डॉट, यानी कि दैट बिग सर्कल इज द सेल, वो छोटा डॉट इज द न्यूक्लियस. छोटे डॉट के अंदर है डीएनए जिसमें चेंज हो गया. वो तो डीएनए में चेंज हो गया, उससे सेल को पता चला अरे हम डिवाइड करते जाते हैं. तो ये लोब्यूल्स के अंदर जो सेल्स है नॉर्मली ऐसे रहते हैं जस्ट सिंपली लाइनिंग द आउटसाइड ऑफ दैट लोब्यूल. नाउ दीज आर गोना बी बिग मेडिकल टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, लेकिन आप उससे मत घबराइए. आप अगर ध्यान दे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें से कोई पेशियां ऐसे डिवाइड करने लगते हैं. ओके, एकदम शुरुआत में डिवाइड करते हैं. तो नाउ मैंने बोला था कि इन सम कंट्रीज व्हाट हैपेंड इन प्रीवियस इयर्स वाज देयर वाज ओवर डायग्नोसिस. यानी कि because there are some changes in the DNA or RNA even at different levels of the cell coming together is a disturbed state and some of these cells are dividing. And this is atypical, not typical. ऐसे hyperplasia meaning too many cells, increased number of cells. तो normal versus little bit abnormal, यानी कि more cells than there need to be. तो ये ऐसा नहीं है कि each time, so यहाँ पे अगर
कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, कुछ बड़े से चेंजेस हो गए, तो ये फिर से यहाँ थियोरेटिकली एटलीस्ट जा सकता है। लेकिन अगर पता ही नहीं हो और ऐसे ही जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहे और पता ही नहीं है कि अपने बॉडी के अंदर ये हो रहा है, तो देन बाय द टाइम यू गो टू द डॉक्टर इट कुड बी लाइक दिस, लुकिंग लाइक दिस और दिस और दिस। जो ऐसा दिखना चाहिए, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, फुल ऑफ सेल्स, और वो इतने हो जाता है, नाउ दे आर नो रूम, they are going into the bloodstream. And why is it easy? Because ये देखो आप, हर लोब्यूल को, इट्स सच अ ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज सिस्टम कि हर लोब्यूल के यहाँ पे सब ब्लड कैपिलरीज है, हाँ, क्योंकि द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन इज इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए ब्लड सप्लाई मिलना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी में व्यवस्था कितनी सुंदर है, आप देखिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, द ब्लड वेसल्स आर वेरी क्लोज टू दीज एपिथेलियल सेल्स, यानी कि एकदम हाथों हाथ मिला के, यू नो, दे आर वर्किंग इन हार्मनी ऐसे। बट in this cancer situation, these cells are out of whack, there are too many, and then they start escaping into the bloodstream. Bloodstream, और blood streams क्या है कि ये blood vessels are throughout the body, यानी कि यहाँ पे है, it is connected, and ये देखो ये आपके रिब केज है, यहाँ जो बताया गया है, तो आपके बोन्स है, उस ब्रेस्ट के पीछे आपके जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है दैट विल गो ऑन and are connected to the rest of your body, right? So if some cells are able to escape, it's like piping. If some cells are escaped into the piping, they can travel और अलग अलग जगह पे जाके वो नई तरीके से अपना कैंसरस ये सब सेल्स बढ़ते जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी कि ट्यूमर्स और जगह पे क्यों मिलते हैं, कि इफ इट स्टार्टेड इन ब्रेस्ट कैंसर, बट हाउ कम देयर इज ट्यूमर इन द बोन, या फिर और अलग जगह को जाके, और समटाइम्स इन द ब्रेन अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाई? बिकॉज द सेल्स हैव एस्केप्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दैट इज व्हाई अर्ली डिटेक्शन can help, na? Because treatment can be easier than when it's already at this stage. So let's look now again. I'm showing you a simple diagram. Nucleus as a circle, बड़ा सा circle is the actual cell. 3 रिसेप्टर्स है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 3 रिसेप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर में, ER, PR and HER2. ओके, तो ये क्या है? These are proteins that are found either on the nuclear membrane or the cellular membrane यानी कि the boundary, उस पे ये प्रोटीन्स है। एंड ये प्रोटीन्स का जॉब क्या है? ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि सिग्नल करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लोट अराउंड करते होंगे, वो यहाँ अटैच होके और सेल में इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये प्रोटीन्स कि ऐसा करो वैसा करो करके। Similarly, these as well. So ER stands for estrogen receptor. Estrogen is one of the female hormones that is important in the menstrual cycle as well. Estrogen, progesterone, okay, important in the menstrual cycle, during the pregnancy, childbirth, post menopausal, premenopausal, menopausal, post, throughout the entire lifespan. Estrogen and progesterone are 2 important फीमेल हॉर्मोन्स। तो उन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स जो है, यानी हॉर्मोन्स यानी कि क्या हम बोलते हैं ना, हॉर्मोन्स की वजह से ये हो गया वगैरह, वो हॉर्मोन्स है क्या चीज? दोज हॉर्मोन्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर फ्लोटिंग अराउंड इन द ब्लड स्ट्रीम. एंड हाउ आर दे एबल टू एक्ट? दोज हॉर्मोन्स go and latch on to their receptor. Receptor is on different cells throughout the body, and these floating around these molecules go attach, and then the receptor gives instructions to the cell accordingly. Now, there are some forms of breast cancer which are the most aggressive, जिनके लिए ट्रीटमेंट्स अब तक रिसर्च बहुत सा चल रहा है. This is triple negative breast cancer, यानी कि one thing that I didn't mention, what happens in cancer, all cancers mostly, is कि सेल्स जैसे दिखने चाहिए ना नॉर्मल बॉडी में, वैसे दिखना बंद करते हैं. दे काइंड ऑफ लुक वेरी डिफरेंट. द रिसेप्टर्स दैट शुड बी देयर आर नॉट सीन. सम ऑफ द रिसेप्टर्स दैट शुडंट बी देयर मे बी सीन टू मच. लाइक समहाउ व्हेन अ पैथोलॉजिस्ट लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप, दे कैन टेल कि अरे ये बहुत से अलग से दिख रहा है सेल्स.
That is how part of the diagnosis for many cancers. तो वैसे ब्रेस्ट कैंसर के भी अलग अलग टाइप्स है, हम देखेंगे. उसमें से एक टाइप है, उसका नाम है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि TNBC उसका शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर. उसमें क्या होता है कि ये जो तीन जो रिसेप्टर्स है वो दिखते ही नहीं है कैंसर सेल्स में, ऐसे डिटेक्ट नहीं होता है. तो वो तीनों के तीनों डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं. दैट इज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर. दैट्स क्वाइट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर. तो उनके ब्रेस्ट कैंसर के सब टाइप्स क्या है, तो हमने अभी देखा ये ER पॉजिटिव. पहले ज्यादा करके ER PR दोनों देखते थे, यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर. अब ज्यादा करके ER पे लाइक दे जस्ट फोकस मोर ऑन ER पॉजिटिव और नॉट. तो these are some of the things that are immediately should be tested for the tissue. If biopsy sample अगर लिया है to check कि क्या है कैंसर का सिचुएशन क्या है, तो उसमें क्या चेक होना चाहिए, ER पॉजिटिविटी है कि नहीं. So is the ER estrogen receptor being expressed by those cancerous cells or not? HER2, so human epithelial growth factor, is it? I don't want to say the wrong thing here. Epidermal, human epidermal growth factor, HER2, वो receptor है या नहीं. या फिर is it TNBC, यानी triple negative है या नहीं. In the clinic, these three kind of things are they will report whether it's a ER positive tumor या फिर a HER2 positive tumor. ER positive, HER2 positive दोनों हैं, या फिर it's a triple negative tumor. और ये इनर सर्कल में जो बताया गया है, दैट इज द क्लिनिकल रिपोर्ट्स दैट यू विल सी. अभी साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि इस ER पॉजिटिव में भी 4 प्रकार के ट्यूमर टाइप्स है, या फिर ये ट्रिपल नेगेटिव में भी 4 प्रकार है, या फिर HER2 पॉजिटिव में भी 4 प्रकार है. एंड इट्स द सेम 4 मॉलिक्यूलर सब टाइप्स. सो यहाँ पे लिखा है ल्यूमिनल A, ल्यूमिनल B, HER2 enriched, या फिर बेसल लाइक. ये नामों से आप घबराओ मत, यानी कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अभी कि इसमें अगर ER पॉजिटिव में 4 सब टाइप्स है तो वो है क्या. सो लेट्स लुक एट व्हाट दीज सब टाइप्स एग्जैक्टली आर, राइट. So now again, this is a very complicated slide, but let's take a moment to walk through this breast cancer classification. So मैंने पहले वाले स्लाइड में एक बताया था आपको कि थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं पेशियां, थोड़ी थोड़ी ऐसे ज्यादा ग्रोथ, प्रोलिफरेशन बोलते हैं. They start multiplying and dividing in the initial stages, and then that gets aggressive later, right? So there may be 2 locations. One is ductal carcinoma in situ या फिर lobular carcinoma in situ. So lobular मैंने, यानी कि ये जो lobules मैंने बताया था उसमें उसका ओरिजिन हो सकता है, या फिर ये जो ट्यूब जैसे डक्ट्स है एपिथेलियल सेल्स के ही बनाए हुए, सिमिलर सेल्स बट डिफरेंट लोकेशन, वो डक्ट्स जो है वहां पे ओरिजिन हो सकता है. उसका लेबलिंग अलग हो जाता है अगर ओरिजिन पता हो तो. कभी कभी ओरिजिन पता नहीं होता है, ऑफ अननोन ओरिजिन ऐसे भी हो सकता है. ओके. And then that becomes more aggressive. So it becomes invasive. Invasive meaning now it's invading onto other structures, and metastatic means it's escaped into the bloodstream. It can travel further. तो यहाँ पे दिखाया है कि हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, डू यू रिमेंबर आई शोड यू ग्रेड 1, 2, 3, 4. तो ग्रेड 1 में इट्स जस्ट स्टार्टिंग, ग्रेड 4 में इट्स ऑलरेडी gone into the bloodstream. Some of the cells must have escaped. And then you have these subtypes. उस subtypes में लिखा है ट्रिपल नेगेटिव में ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव ऐसे होगा. रिपोर्ट में, आपके रिपोर्ट में बताया होगा कि ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, इट्स अ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर. या फिर HER2 पॉजिटिव है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर. एंड यहाँ पे प्रोफाइल बताया है टिपिकली विच ट्रीटमेंट्स वुड इट बी रिस्पॉन्सिव टू. बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है आजकल. सो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी तो है. वेल, हियर्स द थिंग, if a cancer is detected very early and it's contained, then it can be surgically removed with negative margins. So complete resection, meaning कि जब surgeon अंदर जाके resect करता है, removes the tissue, on the boundaries of whatever is removed, there were no cancer cells detected at all. So
looks like it was contained, removed, gone. Okay, surgery. Radiation, ऐसे अलग अलग अप्रोचेस है. कीमोथेरेपी क्या है बात कि सिस्टेमिक, यानी आप ब्लड स्ट्रीम से जा रहे हो और वो औषध कीमोथेरेपी दे रहे हो, एंड दैट्स एक्टिंग ऑन द सेल्स, दैट्स डिफरेंट. बट surgery, ideally, if it can remove the entire mass, that's excellent. If not, then you follow, the doctor will suggest either radiotherapy, like radiation, or chemotherapy, or a combination. या फिर आजकल टारगेटेड थेरेपीज है, यानी कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स उस सेल्स पे एक्सप्रेस हो रहा है उनको टारगेट करने वाले कोई नए औषधियां आई है. या फिर इम्यून सिस्टम आपकी जो है वो इम्यून सिस्टम के साथ काम करने वाले भी है. सो दोज विल you will have to have those discussions with the oncologist, but that is for later and it's a little outside today's scope. So because we don't have that much time, but it's important to understand that there are many different types of this breast cancer. And depending on the type of breast cancer, the molecular changes that have happened and the histology, the pathology, like where it was originated, how the tissue is looking right now, and how much of the cancer must have tumor cells may have escaped, the stage, the grade, receptor expression, all of that उस पे निर्भर है प्रोग्नोसिस, या फिर क्या रिस्पॉन्स आपका होगा, थेरेपी को क्या रिस्पॉन्स होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, एंड देन फाइनली, what are the different things that can be done? See, there are the cancer treatments. Like I said, the regional, yani localized, which is surgery. Yani you just cut it out, right? Cut, remove. Radiotherapy, yani ki you focus those beams of radiation, on the cancerous cells and kind of in a way burn it out. That's not the exact medical, not the right word, but just for understanding, I'm using that. You kind of destroy it right there and there. Local. Systemic, yani ki introduced into the bloodstream and then it travels to the affected tissue and removes. That can be chemotherapy, immunotherapy, endocrine therapy. So if it is a ER/PR positive, then endocrine therapy karke hai, that is used typically. Or monoclonal antibodies bhi hai. But then on the other side, working hand in hand with medical treatments can be lifestyle changes, regular physical activity, paying attention to the nutrition, because remember, what we eat is also all being converted into chemicals and that's going into the bloodstream too, right? Sleep, या फिर माइंडफुलनेस, योगा, ऐसे म्यूजिक थेरेपी, आप जो भी साइड में भी करते हो उसको, दैट कैन गो हैंड इन हैंड विथ द मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट. तो दोनों का अप्रोच बैलेंस्ड ऐसा इज कैन हेल्प. So just taking a pause and remembering again that your own meaning is much deeper than the cancerous cells it may be dealing with. As you can see that I showed you that initially, at least, those cancer cells are very local to that region, the affected organ. And then slowly they start traveling. But even if someone you know is dealing with advanced stage, even if that is true, still the number of cancer cells is less and the number of non-cancer cells in the body are more. तो अगर पूरे सिस्टम को बैलेंस हम टिल्ट slowly kare, hand in hand with whatever medical treatments are being received, so it can benefit even more. And hopefully you take away some key messages from this talk today. So dhanyawad. Okay. So Dr. Birendra, I'm not able to hear you. Yeah. So we have many questions, but Dr. Kamli, I will pick one question only. Sure. That उसमें पूछा कि इम्यूनोथेरेपी कब देते हैं और ये क्या होती है? अभी जस्ट आपने बोला था इम्यूनोथेरेपी के बारे में कोई पूछ रहा है. तो immunotherapy is typically, it
depending on the testing, it can be done at various stages, and that is up to the medical oncologist to decide. But PDL1 PD1 करके ऐसे मॉलिक्यूल्स है, सेल्स पे होते हैं, तो उनको बोलते हैं चेक पॉइंट्स, इम्यून चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स करके है, आपने सुना होगा, लाइक केट्रूडा करके, pembrolizumab, that is one that is used in breast cancer, but that depends on the receptor positivity of the cells, and also on the oncologist, actually, because the oncologist will make that decision. It's not one, it's a team of your oncology team will make that decision. So they'll look at, first of all, whether the tumor cells are localized or not. तो सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, तो पहले वो करेंगे, या और फिर सर्जरी के पहले और बाद, so something that is given systemically through the bloodstream before surgery is called neoadjuvant therapy, और सर्जरी के बाद, just to prevent any further recurrence etc, adjuvant therapy होता है, उसमें immunotherapy यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि इम्यूनोथेरेपी ऐसा है जो आपका जो फाइटर्स है ना ब्रेन की, जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, उसको टारगेट करके बनाया जाता है, जो कि आपके को कैंसर से लड़ने में मदद करे, जैसे एंटीबॉडी हो गई, वैक्सीन हो गई है। तो उनको आपके इम्यून सिस्टम को सक्रिय करके करता है और एंटीबॉडीज प्रदान करता है, ताकि जो है कि मोर आपके कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके। Am I right, डॉक्टर कमल? That is correct. Yes, that is correct. Yeah. लेकिन वो कब देना है, ऐसे सब कुछ, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के ऊपर है, और वो जो स्टेज होगा, जैसा होगा, किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो वही डिसाइड करते हैं। Correct. Yeah. So now we are the end. Dr. Komudi going to visit India in the February 24th and 25th. She will be in JNU in the Biobank India Foundation conference. So we will happy to meet you, Dr. Komudi, and I would like to express my sincere thanks for your insightful and informative talk on breast cancer, and also the giving the biostatics view of the cancer, and the depth and clarity with which you explained such a complex topic from cell and till the advancement and the markers on the breast cancer. And in this way, your presentation not only enhanced the understanding of mine and also the audience, but also provided new perspective and prevention, treatment, and awareness of the breast cancer. And I think that in our country, awareness is very less, and don't be shy, whatever and wherever is your cancer. You should discuss with your family member and your colleague and even your local doctors. So thank you, डॉक्टर कॉमेडी, एंड आपके योगदान और इस दिशा में हमें और अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए प्रेरित करता है, और हमें यह समझने में मदद मिली कि मतलब बेसिक से कैसे जो है कि कैंसर होता है और अर्ली डिटेक्शन से कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो once again, thank you for your valuable input, and you look forward to learning more from your experience in the future through BBI Cancer Care. Thank you, Dr. Virendra, for having me here. Thank you, everyone, for your time. And धन्यवाद. Yeah, thank you. Bye.